the Gujarat Industry Development Association and SME Chamber of India stand committed to being your partners in the journey today, tomorrow, and always. Thank you for being here with us. Let us make the most of this evening to learn, connect, and build a stronger, more resilient MSME ecosystem together. I look forward to enriching sessions ahead and to witnessing the collective energy of the summit translate into the actions. Friends, I would like to thank you ICICI Lombard General Insurance Company Limited. Please give them a big round of applause. And I would like to invite Mr. Shivam Sharma, Deputy Vice President, SME Agency, ICICI Lombard General Insurance Company Limited, for his welcome address. Over to you, sir. Good evening, everyone. सूरत में आवाज बहुत ओछू आयो. Good evening, everyone. Good evening. It's an absolute pleasure to welcome you all on this exciting MSME knowledge session. I may welcome to all of you and extend a very special welcome to our partners, SME Chamber of India and Gujarat Industry Development Association, guests and all the entrepreneurs and the business leaders who are joining today. We are truly delighted to be here with you. As we gather here, we stand an important crossroads in the journey, which is shaping MSMEs. We know that MSME is the backbone of economy, driving innovations, generating employment, and contributing to the overall growth of the nation. However, with the rapidly changing business landscape, it is crucial to ensure that businesses are empowered with the right tools, knowledge, and strategies. Even in the face of uncertainty and the risk, our goal is clear: to share innovative solutions and effective risk management strategies will equip MSME to build resilience and continue to grow sustainably. In the ever-evolving business environment, today the privilege of hearing the industry's leaders, the experts who will share their valuable inputs and insight about the practical knowledge about whatever the MSMEs are doing it. As a part of this session, we will also be hosting a panel discussion which will dive deeper into the subject line. Your presence here today is a testament and the collective desire to learn, innovative and adapt. The fact that so many have chosen to take time out of your busy schedule to be a part of this session demonstrates the commitment you all have towards growing business and contributing to the nation's economic development. One important thing before we proceed, since this is an exclusive closed-door event, we kindly request you to refrain from taking any photographs or videos during the session. Additionally, we ask you, do not share any promotions or event-related content on social medias, WhatsApp, or any other social medias. This will ensure the focused and private space of all the participants. Once again, I welcome each and every one of you. I am confident that this session will provide you with the valuable tools and the insight that will empower you to face challenges head on and to help your businesses build a resilient and the prosperous futures. Let's make today a learning and networking and growth session. Thank you all. Enjoy the sessions. Thank you, Shivamji. Now I'd like to invite Mr. Ankit Goyal, Associate Vice President, ICICI Lombard General Insurance, for his presentation. Over to you, sir. Please give a big round of applause to him. Good evening to everyone. चलो बहुत बढ़िया है. हमने कहीं सुना था अब चैन से सोना है तो जाग जाओ. So this insurance brings you the mental peace of mind because you have invested your hard-earned money in your businesses and you are the backbone. Reason being, you are running the country, you are providing services, you are providing your material, you are the manufacturers, you are the trailblazers of this India. So over to this presentation. Salam MSME Masterclass. So what is MSME? Can we have answer from anyone? Yes. Okay. So what do you mean by micro and small management services?
Okay, so definitely in India we have a market space or industrial space which is being divided into various segments. Somewhere is SME, somewhere is MSME, somewhere is big market and big industrial markets or conglomerates. Okay, to the next page please. Okay, I have a pen here. Over to the need of insurance. Why do we need insurance? So insurance not only provide you the financial security, it also provides you the opportunity to take more risk into your business. How it is happening? So suppose you have an investment of 100 crore, 50 crore or 150 crores in your business. If anything mishappens to your business, like if there is any natural calamity event, if there is any fire to your premises, where the money will come from to compensate your losses into your business? So this insurance will make sure that you will get timely money for the loss you have faced during these incidents. Risk exposures. So what is risk exposures? To be in a very precise manner, आपका जितना भी asset, आपका जितना भी business का risk है, which is being exposed to these losses is called risk exposures. So it is very much evident from the photo, like entire factory is being gutted into the fire. So what happens when there is a fire? You have a loss of your assets, you have a loss of your stocks, you have a loss of your plant and machinery, and because the entire machinery is down and gutted in the fire, there will be no production, and because there is no material being produced, you cannot sell anything. If you cannot sell anything, you cannot earn anything. There will be a loss to your asset as well as loss to your profits. So coming to this point, we have 4 parameters like risk identification. Whatever business you are in, there will be some inherent risk to your business. If you are into the business of chemicals, you may be dealing in solvents which may be hazardous or flammable in nature, and it is very much necessary to identify the inherent risk into your business. Coming to the next point, measuring the risk exposures to the business. How much or up to what extent you are being exposed to your business. Suppose if your plant is being divided into various parts and they are very much aparted from each other. If there is a fire in one block, possibly you can prevent your another block. Then third is risk mitigation. What is risk mitigation? How you are acting according to your business to mitigate these risks. The risk of fire, the risk of business, the risk of loss of profit and everything. The risk due to burglary. Then there comes risk protection. You can have your risk protection by transfer of risk mechanism. How do you transfer of risk mechanism? By purchasing a insurance policy. आपके प्रीमाइसेस में कुछ भी होता है, आपने एक इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज की है, वो पॉलिसी इन दैट इवेंट विल मेक श्योर कि आपका जो भी लॉस हुआ है वो कंपेंसेट किया जाए. दिस इज हाउ यू आर ट्रांसफरिंग योर रिस्क. So what can happen to our business? Like fire, workman compensation. You have certain people or employees or laborers which will be working within your premises on contract basis. आपके premises में किसी बंदे की death हो जाती है, their family or the contractors may sue you against them. So you will have to pay a compensation. So there is a WC policy which make the payments against these compensation. Then there comes cyber risk. Cyber risk is being increasing daily at a very steep rate here in India, because we are very much exposed to such risk, because we are not very much aware about the cyber risk in cyberspace. So we have cyber insurance as well. Then there come third party liability. Anyone who does not belongs to your premises, who does not belongs to your business, comes to your premises, or because of your business anything is happening to other people, that will be triggering the third party liability. अगर हिंदी में कहें तो आपकी संवैधानिक दायित्व. तीसरा है बर्गलरी और थेफ्ट. प्रीमाइसेस में वी हैव सीन सर्टेन नंबर ऑफ टाइम रात को लोग प्रीमाइसेस में घुस जाते हैं. They do damage your buildings, they do damage your shutters, they take away your materials, so that can also get covered within the same policy.
Cash and transit, cash and safe. Probably since we are in the business, definitely there will be some money transactions. You will be collecting your money during the day hours, you will be sending your employees to the banks for the deposit. If someone comes in the way, अगर कोई लूट हो जाता है, कोई लार्सनी हो जाता है, उन पे कोई असॉल्ट हो जाता है, that can be covered under the cash in transit and cash in safe. Now, what is cash in safe? आपके ऑफिस में कोई तिजोरी रखी होगी, कोई सेफ होगा जहाँ पे आप लोग अपना कैश सेफ करके रखते हैं. If any burglary happens to that safe, along with the damage to the building, that can get covered in the cash and safe. Similarly, we have marine cargo, machinery breakdown, fidelity, electronic equipment insurance, and directors and officers liability. So this is a 360 degree, we can say, a diagram or the requirement of the insurance. How does it, reflects your MSME sector. So if I come to hospitality, what do they need? In hospitality, we have hotels. There can be instances of fire in hotels. There can be instances of, earthquake, जहाँ पे पूरी building में damage हो जाता है. There can be riots that can get covered under fire policy. Then there is a cyberspace, CGL, commercial general liability. Simultaneously for IT offices, you are running your software development company. Okay, so you have whole lot of amount of laptops, digital servers, and digital tapes and drives to save your data. They generate a huge amount of heat because of any electrical short circuit that can catch fire. So you can protect your entire premises along with your belongings and to your assets within the same fire policy. Same is textile. Textile के अंदर अब हम टेक्सटाइल से काम कर रहे हैं, उसमें कॉटन होगा, कपड़ा होगा, कई तरह की चीज़ें होंगी. दे ऑल आर वेरी मच फ्लेमेबल. फिर व्हाट इज़ मरीन इंश्योरेंस? यू परचेज समथिंग, किसी मैन्युफैक्चरर्स के प्रीमाइसेस से मटेरियल आपके प्रीमाइसेस तक आ रहा है. इफ़ ड्यूरिंग दैट जर्नी एनीथिंग हैपन्स to that cargo which belongs to you, for which you have paid the money, that will be compensated for that loss. Then we have manufacturing sector. Manufacturing sector comprises of anything, like if you are into manufacturing of chemicals, if you are into manufacturing of plastics, healthcare industry, electrical manufacturing premises, like we have various names you will see in the upcoming slides: Ajanta, Videocon. So examples of risk exposures in the insurance. Recently we have seen a fire in this premises. How many of us are aware about this? क्यों हुआ? So why this has happened? Anyone from you? So I want to make this session a little interactive. सो हम लोग सजग रहें और जागते रहें. तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या रीज़न रहा होगा यहाँ पे फायर का? शॉर्ट सर्किट. वेरी स्मॉल रीज़न जो हम लोग हमेशा नेग्लेक्ट करते हैं, हम ध्यान नहीं देते. वायरिंग पुरानी हो गई है, इलेक्ट्रिकल पैनल्स के अंदर से वायरिंग लटक रही है, चीज़ों का प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं होना, टाइमली करेक्टिव एक्शंस नहीं लेना, उसकी वजह से इतना बड़ा फायर लगता है. हम लोग सोचते भी नहीं है कि अगर फायर लगेगा तो बिल्डिंग को भी डैमेज होगा, हमारा जो गुड्स पड़ा है वो डैमेज होगा, फिनिश स्टॉक्स है. सो एवरीथिंग इज़ एट रिस्क अनलेस वी टेक करेक्टिव एक्शन. अगर यहाँ फायर इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं होती तो क्या होता? एंटायर बर्डन ऑफ योर बिजनेस विल फॉल्स अपॉन योर हेड. और उस समय कितना डिस्ट्रेस होगा कि जब हमारे पास इंश्योरेंस नहीं होगा, करोड़ों का माल चल जाएगा. 10 साल की मेहनत, 15 साल की मेहनत जो आप लोगों ने अपना बिजनेस और एम्पायर खड़ा किया है. So that is why the insurance is very much important and necessary. That's why I said it not only gives you the mental peace, it gives you the confidence to stand again. So as per the industry statistics, we have seen like 20,000 deaths per year caused just because of fire. 56% disasters are because of the electrical faults. And this is not only through the India. I must quote a report from Allianz Global, which is an international entity working throughout the world. Even in their report, they have mentioned that majority of fires, 70% of fires are arising out of
electrical faults, and that the report was published in the year of 2022. Then 80% of fire are caused by electrical installations within India. Simultaneously आपने भी देखा होगा, अगर मैं पिछले लास्ट 50 ईयर्स की बात करता हूँ, तो जो भी नेचुरल कैलेमिटीज़ हैं, अर्थक्वेक्स, टॉर्नेडोज, टाइफून्स, साइक्लोन्स, ये पहले इतने नहीं आते थे. हैवी रेन्स, स्टॉर्म्स, पानी का इकट्ठा हो जाना. रिसेंटली हमने देखा अभी बड़ौदा के अंदर सारे लॉस है. Simultaneously, we have seen Biparjoy, Taukte. The rates of recurrence of these events has increased. 3 साल में कोई ना कोई प्राकृतिक आपदा आती ही आती है. अब ये तो बहुत एविडेंट है क्योंकि हम लोग कितने सालों से देखते आ रहे हैं. पिछले 50 सालों के अंदर प्राकृतिक आपदा का हर 3 साल में आना लगभग तय हो गया है. तो इट इज़ आवर ड्यूटी to take fire insurance, and the MSME, we have a separate MSME product developed specifically for you people, जिसके अंदर ये सब तरह की चीज़ें कवर है. Everything is covered. It's a bundled package product. So here we will see a small, insights about the insurance industry, how the insurance industry works and what it is. So if you know the New India, this is actually a PSU, public sector undertaking. That's a government company having the largest business base in India. We are a private sector leader, and we are just a little bit after this New India. ICICI Lombard has grown or reached to this place based upon their clients, based upon the trust we have within our clients. हमारा क्लेम सेटलमेंट प्रोसीजर, हमारे वैल्यू एडिड सर्विसेज, हमारे रिस्क मिटिगेशन सर्विसेज, क्लाइंट को एजुकेट करना, दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमारे क्लाइंट को हमारे साथ जोड़े रखता है. क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन क्या होती है? क्या केवल पॉलिसी लेना, फिर मैं अगले साल आपको तभी चेहरा दिखाऊं जब मुझे प्रीमियम लेना है? नहीं. इट रिक्वायर्स कंटिन्यूस एंगेजमेंट विद द क्लाइंट. इट रिक्वायर्स कंटिन्यूस टीचिंग्स टू द क्लाइंट्स. क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, क्या रिस्क में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कहाँ पे हमें इम्प्रूवमेंट्स लाने हैं. दैट एंटायर थिंग विल बी टीच्ड बाय द ICICI Lombard as well. So we have a separate team in our company which look after all these requirements. So if you see, this is our ranking. In fire, we are just behind the New India. We are at the rank 2nd. In engineering, we are having hardly any difference, and this year I must say we will be crossing New India as well in engineering business as well as in fire. Marine and liability, we are already leading the sector. So this is a small overview about our finances and the company's performance. We have done, this is till December 25. We have already done 20,623 crores of business. Then this is profit after tax 1999 करोड़. कई सारी इंश्योरेंस कंपनी का टोटल सालाना प्रीमियम भी उतना नहीं है. तो यू कैन अंडरस्टैंड द साइज ऑफ आवर कंपनी, यू कैन अंडरस्टैंड द क्लेम पेइंग कैपेबिलिटी ऑफ आवर कंपनी, हाउ कैपेबल वी आर एंड हाउ स्ट्रॉन्ग वी आर. देन वी हैव 28.1 मिलियन पॉलिसीज इशूड. हमारा प्रेजेंस 625 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर है. सॉल्वेंसी रेशियो, जहाँ PSUs गवर्नमेंट कंपनीज का 1.5 है, आर सॉल्वेंसी रेशियो इज़ जस्ट डबल टू देम. इट शोज़ कि हमारी जो फाइनेंशियल बैकिंग है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है. हम किसी भी बड़े क्लेम से घबराते नहीं हैं. सो दिस इज़ अ ग्लोबल अवार्ड विच वी हैव वॉन in the year of 23 and 24, which shows that our commitment, our perseverance towards this sector, towards our industry, and towards our these are certain big names which has been associated with the ICICI Lombard: Hero Cycles, RBI, HCL, Saint Gobain, Pidilite, ArcelorMittal, Adani, JSW, and First Source, Hyundai, Byju's, Infosys, ITC. I must say there are certain names जिनका साइज इतना बड़ा है प्रीमियम्स का और पॉलिसीज़ का, यू कैन नेवर इमेजिन. इफ़ आई discuss about Adani and JSW, they have 60,000 crores of asset located at a single location.
And Adani has a total asset insured with ICICI Lombard of 1,24,000 crores. IRCON, Exide, Serum Institute. Serum Institute, if you remember, this is the same company which has developed the vaccines for Corona. So when there was a fire incident, it was also insured. Tata Steel, Ferrero Rocher, Hitachi, Tata Projects, Cape Gemini, Pfizer, Nestle, Reliance, Falcon, Piramal, Flipkart. So, why we are best? Focus here. This is the largest capacity of any insurance company in the private sector. We are the one who can handle one of the largest and biggest risks in India. That shows that our fire capability per PML basis is of 1400 crores. Then we are technologically very much advanced as compared to our competitors. We do provide digital platforms, real-time tracking of the policy, real-time tracking of the claims, risk mitigation measures, firewalls, fire extinguishers, IoT devices, CRA, CPM, VAS services, which is all provided by ICICI Lombard. Generally, you people go in contract with certain fire safety companies who do provide such services. But we have an internal department to cater all these requirements of yours, and we do provide services at a very competitive rates as compared to the market. So here's the name MSME Suraksha Kavach policy, which is specifically being designed for the MSME sector. You know, we have designed this product looking after your requirements, looking after your needs. Our claims is our strength. 95% of the claims get settled in 90 days for the marine. For property, we do settle for 5 lakhs तक का claim हम लोग अगले 10 दिनों में settle कर देते हैं. And we are also into the development of new things. We are coming up with the new facilities, digital facilities, wherein you can, lodge your claims via app. You can track your claim settlement procedures, what is the status of your claims within that app itself. Then we have health facilities. We have one of the biggest cashless network. Then liability, average count of the claims we have managed is 2,000 plus per year. Oh, wait a minute. I just forgot to mention one of the important point. So if you see executive tie-ups, so it's not only within this space. We have executive tie-ups for big investigators, then loss adjusters, lawyers, cyber consultants, wherein they come and provide the technical assistance in the claim settlement as well as the client's understanding. Client को कई शंकाएं रहती हैं, कई चीज़ें पूछनी रहती हैं, so they provide their they come with their expertise for your solutions. So these are some of the paper cuttings which has been mentioned in the market. If you see and read, ICICI Lombard 10 दिन में निपटाएगी दावा करती है, which we have already seen, and you can cross verify it from the market as well. MSME claims up to 5 lakhs to be settled within the 10 days. ICICI Lombard to settle claims up to 5 lakh rupees 10 days within the 5 lakh up to within the 10 days. So it is our commitment, and these are not only words. We are abiding to it. We are following it very religiously because our market reputation depends upon it. हम मार्केट में पिछले 20 सालों में ऐसे ही लीडर नहीं बन गए. क्लेम सेटलमेंट इज़ आवर स्ट्रेंथ. हमसे जो क्लाइंट्स जुड़े हैं, एक बार जुड़ने के बाद वो छोड़ते नहीं हैं. And this is the data which is being published on the IRDA website, which is available in the open forum. You can see the lines in the orange, then blue. Blue represents the other companies which are settling the claims, whereas orange represents ICICI Lombard. We are at the 73% of the claim settlement ratio. Other companies are 64%, whereas 32% is the PSUs. Whether it is property, health, marine, we are leading everywhere.
This is our risk management journey, and it is very much important for an organization which is into the business of ensuring risk. They need to have a core understanding and competency in the risk mitigation as well. अगर मेरी competency risk mitigation में नहीं है तो how I will be understanding your risk, how I will be ensuring your risk. So we have a good, I must say, a network of in-house engineers who do go to the client's premises. They inspect their premises, they prepare reports for the clients wherein they mention कि आपके risk और आपके premises में factory में improvements की क्या क्या गुंजाइश है, कहाँ कहाँ आपको risk को improve करना है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जहां आपको ध्यान देना है सो दैट आप आने वाले किसी भी एक्सीडेंट को पहले से ही अवॉइड कर सकते हो. सो अवॉइडिंग क्लेम्स हेल्प्स यू ब्रिंगिंग डाउन द प्रीमियम. सो लॉस प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, प्रॉपर्टी रिस्क असेसमेंट्स, हेल्थ चेकअप्स, digital initiatives. We have IL Take Care app. So that app helps you for the claim settlement, filing of the claim, to check the status of the claim. It's not only for the property lines of business as well as it works for the health business, wherein you have GMC policies, group mediclaim policies, group personal accident policies, GPA policies. When we were in 2015, we started loss prevention and control department. 2018, we came up with the asset valuation and marine loss engineering department. That was year when we added another feather to our cap. So what is asset valuation? Certain number of times we see कि साहब मैंने बैंक से लोन लिया है 50 करोड़ का, मुझे इंश्योरेंस कराना है. जब क्लेम सेटलमेंट होता है तो क्लाइंट बोलता है क्लेम कम क्यों मिला, बिकॉज दे वर अनअवेयर कि उनको कितना इंश्योरेंस कराना था, उनकी इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट क्या थी. सो द वैल्यूएशन is an aspect wherein if you go into the market for a valuer to get your assets valued, they charge you a very higher rate, whereas IL provides you a very competitive rates as compared to the market if you are a client to the ICICI Lombard. Then marine loss engineering, आप जो भी अपना ट्रांजेक्शन करते हैं, आप नेचुरल इफ यू आर इनटू द बिजनेस, मैं अगर मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ तो रॉ मटेरियल मंगाऊंगा, और अगर मैं कुछ मैन्युफैक्चर कर चुका हूँ तो मेरा फिनिश प्रोडक्ट्स बेचूंगा. एंड इट विल हैपन आइदर बाय द वे ऑफ यूजिंग ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड, ट्रांसपोर्टेशन बाय सीज. वहाँ अगर कोई लॉस आ रहे हैं, कोई इनहेरेंट चीज़ है जो आप नहीं देख पा रहे हैं, बार बार लॉस आ रहे हैं, तो उसको कैसे कम किया जा सकता है, उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, आपको कौन से स्टेप्स लेने की ज़रूरत है कि आपकी ये क्लेम्स आए ना. तो वो चीज़ का डिपार्टमेंट भी वी हैव इन लाइन. Then digital initiatives, we prepare our virtual risk assessment apps, IL Take Care apps in 2019, then emerging solution risk, cyber risk solutions, then modernizing the solutions, IoT solutions. We will discuss it in the further slides. Health insurance. So we have one of the widest network of health providers and hospital network in the country. We have 10,900 plus hospitals of network presence in 700 plus locations across the India. How technology has been helpful? Comprehensive mobile apps are there. हम लोगों ने अभी बात किया था कि IL Take Care ऐप है, आप बीमार पड़ गए हो, आप अपना क्लेम फाइल कर सकते हो, आप अपना स्टेटस देख सकते हो, आपका क्लेम कहाँ रुका है, कहाँ है, कितना प्रोसेस हुआ, कब प्रोसेस होगा, कब क्लेम पेमेंट होगा, वो सब आपको IL Take Care ऐप में दिखेगा. Then we are already 9001 and 2015 certified in-house investigation team for the fraud controls. और data analytics के लिए we are diving into the area of AI, artificial intelligence. We will be the first company in market to bring artificial intelligence in the business of insurance. Then there is customer service. हम लोग रियल टाइम क्लेम कम्युनिकेशन करते हैं. दैन 24/7 हमारा इन हाउस खुद का कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव सेंटर्स कह सकते हैं आप, या कॉल सेंटर्स कह सकते हैं. दैन क्लेम हेल्प डेस्क. दैन क्लेम स्ट्रेंथ, कैशलेस अप्रूवल्स वी प्रोवाइड विद इन 60 minutes, एंड आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट इन द इंडस्ट्री अक्रॉस ऑल द इंश्योरेंस कंपनीज. So these are different line of business: fire, engineering, marine cargo, liability, group health.
1 2 3 4 5, फिर और भी WC होगी, फिर और कोई GMC होगी, तो क्लाइंट कितनी पॉलिसी हैंडल करेगा? उस क्लाइंट का काम है अपने बिजनेस को देखना, ना कि इंश्योरेंस मैनेज करना। इंश्योरेंस मैनेज करने के लिए हम लोग हैं। तो वी हैव डिवाइज्ड अ सिंगल प्रोडक्ट कवरिंग ऑल दीज थिंग्स। एक ही प्रोडक्ट, एक ही अम्ब्रेला के नीचे आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट तरह से कवर कर ली जाएंगी। सो यू डोंट हैव टू गेट इन टू पेन ऑफ रिन्यूअल। अरे आज एक नहीं हो गया, आपको सिर्फ साल में एक ही बार पॉलिसी रिन्यू करनी है। सो वी डू कवर, we have this MSME Suraksha Kavach policy, wherein we cover for fire, engineering, miscellaneous sections. We provide coverage for your assets, building, stocks, plant and machinery. उसको आग लगेगी, उसको नेचुरल कैलेमिटी में कोई नुकसान हो गया, राइट्स हो गए, किसी ने मैलिशियसली डैमेज कर दिया, कोई इम्पैक्ट डैमेज हो गया, दैट कैन गेट कवर्ड। देन आपके मशीनरी का ब्रेक डाउन हुआ, डैमेज कुछ नहीं हुआ, मशीन चलते चलते ख़राब हो गई, तो वो भी इसमें कवर होता है। इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, पोर्टेबल इक्विपमेंट्स। देन आपका कैश का जो डीलिंग है, कैश इन ट्रांजिट, कैश इन सेफ। देन फ्लेक्सिबिलिटी टू चूज़ द कस्टमाइज कवर्स। आपने बोला कि नहीं, आई नीड ओनली दिस मच ऑफ कवर, मुझे इतना बड़ा नहीं चाहिए, मेरी रिक्वायरमेंट्स इज़ बीन लिमिटेड टू फायर, MBD, मनी। ओके, आप जितना रिक्वायरमेंट है उतना लीजिए। इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू परचेज एवरीथिंग। We have a bundled product and you have the option to choose. If you don't want that particular section, you are not bothered to buy it. If you can select whatever you want. It's pick and choose model. Same happens with the coverage as well. क्विक टैग फॉर द कोड। जैसे ही आप रिक्वेस्ट रेज करते हैं कि आप मुझे प्लीज़ मेरे इन रिक्वायरमेंट्स के रिगार्डिंग मुझे कोड दीजिए, वी हैव अ टैग ऑफ 24 आवर्स। देन सिंगल पॉलिसी डॉक्यूमेंट फॉर द ईज़ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिन्यूअल। हमने अभी डिस्कस किया कि आपको अलग अलग पॉलिसीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। सो यू डोंट हैव टू टेक पेन ऑफ रिन्यूइंग एवरी अनदर मंथ कि भाई अब ये पॉलिसी आ रही है, अब ये पॉलिसी। नो, everything will be covered under the single policy and you need to take care of the policy renewal only once in a while. We have fire and FLOP. Fire लोग, क्योंकि since you people are into the business, you people understand कि इंश्योरेंस क्या है, प्रोडक्ट क्या होगा, बट FLOP जनरली नहीं पता होता। तो मैं आसान शब्दों में आपको बता देता हूँ। आपकी फैक्ट्री है, अगर X पर्सन की फैक्ट्री है, उसमें आग लगेगी तो प्रोडक्शन नहीं होगा क्योंकि फैक्ट्री बंद हो जाएगी। प्रोडक्शन नहीं होगा तो माल नहीं बनेगा, बनेगा नहीं तो बिकेगा नहीं, बिकेगा नहीं तो मुनाफा नहीं होगा। तो वो जो मुनाफा है उसको भी कवर किया जा सकता है अंडर फायर लॉस ऑफ प्रॉफिट। आग लगने की वजह से आपकी फैक्ट्री बंद हो गई, आप प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे, अपना सामान नहीं बेच पा रहे, उसकी वजह से जो आपको लॉस होगा यू कैन कवर अंडर FLOP पॉलिसी। देन MBD, EI, बॉयलर, so these falls under engineering segment. Burglary, money, miscellaneous, fidelity. So what is fidelity? आपके एम्प्लॉयज़ अगर किसी प्रकार का गबन करते हैं, इन्फ्रिंजमेंट करते हैं, इंटरनल चोरी करते हैं, तो दैट गेट कवर्स अंडर द इनफिडेलिटी सेक्शन। इट्स बेसिकली काइंड ऑफ क्राइम डन बाय योर ओन एम्प्लॉयज़। बर्गलरी, कोई थर्ड पर्सन आके चोरी करता है, आपके प्रेमाइसेस को डैमेज करता है, माल लेके जाता है, दैट गेट्स कवर्ड अंडर द बर्गलरी। मनी का हमने डिस्कस कर लिया। व्हाट इज़ ऑल रिस्क? कुछ ऐसे पोर्टेबल इक्विपमेंट्स हैं, कोई डिजिटल इक्विपमेंट्स होंगे, मॉनिटर्स होंगे, UPS होंगे, मोबाइल्स होंगे, कुछ डिजिटल इक्विपमेंट्स होंगे विच इज़ बीन स्पेसिफिकली रिलेटेड टू योर बिजनेस, दैट गेट कवर्ड अंडर द ऑल रिस्क पॉलिसी। देन ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी, पब्लिक लाइबिलिटी पॉलिसी, WC पॉलिसी, दैट गेट्स कवर्ड अंडर द सेम प्रोडक्ट। Then we have an option of selection of STFI and terrorism. Earlier, when the products was released by the government of India under the supervision of GIC and IRDA, there were certain new products called Bharat Laghu Udyam Suraksha and Bharat Sukshma Udyam Suraksha. They were not providing an opportunity for the client for the selection of the perils as well. But we have filed our own product wherein you can save your money by selecting the covers which you want. Jewelers block policy. So basically this policy is specifically designed for the people, those who are into the business of jewelry. If you deal in a small shop or a big showroom for the golds and diamonds, so you can cover your risk under this policy. Then here comes the again important part, marine. So
How many of you are aware of the marine insurance policies? So there is one coverages into this. This is called the waiver of under insurance. What is this waiver of under insurance? If you will see this कि जब आप लोग इंश्योरेंस लेते हैं, ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप 100% का इंश्योरेंस ले पाते हैं। इन कमिंग डेज के अंदर में सपोज कीजिए आपने आज इंश्योरेंस लिया और जब पूरे साल का इंश्योरेंस चल रहा है, उस टाइम के बीच के अंदर में अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा माल आ जाता है या गुड हेल्थ इंटरेस्ट आ जाता है या इफ़ यू परचेज एनी न्यू मशीनरीज, ठीक है, एंड इफ एनी मिस हैपन्स ओवर देयर बिकॉज ऑफ फायर एनी काइंड ऑफ पेरिल्स ट्रिगर्ड ओवर देयर, और उसकी वजह से अगर आपका कुछ इंश्योरेंस के अंदर में सम इंश्योर्ड के बाइफरकेशन में ऊपर नीचे होता है, so that is also covered under this policy, that is the MSC Suraksha Kavach. So you are into total piece of this policy. This is designed for MSME, stand alone for MSME segment के अंदर बनाया गया है. So earlier जो पुराना प्रोडक्ट था हमारे पास जिसके अंदर में बिजनेस सील्ड हम लोग बोलते थे, that was up to 15%. For MSME we have catered it up to the 25%. So this is a huge point as an insurance perspective basis के ऊपर में, and this will give you relief and peace of mind also. Thank you, sir. So where we were at the marine insurance. फायर तो आपने समझ लिया, ठीक है, फैक्ट्री है, लोकेशन है, आग लग जाएगी। मरीन इंश्योरेंस क्या होता है साहब? आप अपनी परेशानियां हमसे शेयर करेंगे, हम अपना एक्सपर्टीज यूज कर सकते हैं आपके लिए। यस श्योर सर, प्लीज प्रोवाइड द माइक टू द है। मशीन्स हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसके लिए मेरीन इंश्योरेंस चाहिए। श्योर। कुछ रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट कर रहे हैं या तो एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो दोनों में इंश्योरेंस लगता है जी। इट बेस्ड अपॉन FOB या CIF, क्या वैल्यू से आप माल बेचते हो या परचेस करते हो, वेरी गुड, बैंग ऑन, उसके मुताबिक ही ये इंश्योरेंस का कैलकुलेशन बैठता है। डेफिनेटली। From KJ Shipping Logistics, I take the marine insurance for my exporters. ओके ग्रेट। So one of the case, I took the marine insurance and the cargo got damaged in transit. After reaching destination, consignee told me to take the claim from the insurance company, ओके but they denied, saying that we can't give you a claim because cargo reached after 90 days. So in this case, how can you help? Okay, so this basic point, I think most of the people are not aware about it. So what is duration clause? Duration clause says कि आपका मटेरियल कितने दिन में कहाँ पहुँचना चाहिए, based upon the general practice of the shipping industry. If it is exceeding the extended limit और उसके बाद मटेरियल डिले होता है तो क्लेम नहीं मिलता है, if it is because of the delay. But अगर मटेरियल डैमेज है, you can have the concealed damage clause within your policies और वो क्लेम आपको सेटल होगा। Specifically there is one more advice also, अगर आप पॉलिसी ले रहे हैं, so it is always advised to go through the coverages which is being covered within the policies. Marine insurance policy runs over the clauses. सबसे खास बात मरीन इंश्योरेंस की ये है कि मरीन इंश्योरेंस थ्रू आउट द वर्ल्ड सेम चलता है। ऐसा नहीं है कि इंडिया के अंदर मरीन इंश्योरेंस अलग होगा, चाइना के अंदर अलग होगा, USA के अंदर अलग होगा, UK के अंदर अलग होगा। नो, मरीन इंश्योरेंस क्लॉजेज आर सेम अक्रॉस द वर्ल्ड। पॉइंट नंबर 2, मरीन इंश्योरेंस पॉलिसीज असाइनेबल पॉलिसी। आप अपना जो फैक्ट्री है वो किसी को नाम नहीं करोगे, बट आपका जो मटेरियल है वो कई हाथों से होकर गुजरेगा, उसकी ओनरशिप कई बार बदलेगी। तो जिस समय क्लेम के टाइम पे जिसकी ओनरशिप होती है वो क्लेम उसको सेटल होता है, डिपेंडिंग अपॉन द ओनरशिप एंड बिजनेस मॉडल ऑफ द मरीन इंश्योरेंस। सो आई विल टच अपॉन द बेसिक एस्पेक्ट ऑफ द मरीन इंश्योरेंस। hello, it's better now. So we have single transit policy, we have marine open declaration policy, then we have marine sales turnover policy. अब आपका मरीन सिंगल ट्रांजिट पॉलिसी पे पहले बात करते हैं। ये कभी कभी रिक्वायरमेंट आता है, सपोज़ कीजिए आपका बिज़नेस लोकल है, आपको कोई बड़ा ऑर्डर मिल गया जो आपको बाहर ट्रांसशिप करना है, तो आप एक बार मरीन सिंगल ट्रांजिट पॉलिसी लेते हैं विच विल कवर ओनली दैट ट्रांजिट। सपोज़ कीजिए आज मेरा बिजनेस है
टोपी और हेड्स बनाने का, तो वो मेरा जितना भी कंजप्शन है लोकल मार्केट में हो जाता है। तो बीइंग केयरलेसनेस मैं इंश्योरेंस नहीं लेता। पर मुझे एक बड़ा ऑर्डर मिला जहाँ पे मुझे 2000 या 3000 टोपीज़ या हेड्स डिलीवर करने हैं टू यूके मार्केट। सो उसके लिए मैंने सोचा कि अब मुझे इतना बड़ा कंसाइनमेंट डिलीवर करना है और उनकी वैल्यू ज़्यादा है, तो आई मस्ट टेक द इंश्योरेंस, क्योंकि वो रेगुलर ट्रांजैक्शन नहीं है, इट इज़ अ स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन जो मुझे एक ही बार करना है। तो उसके लिए मैं मरीन सिंगल ट्रांजिट पॉलिसी निकालता हूँ। मेरा माल यहाँ सूरत से निकलेगा मेरे फैक्ट्री से, और जब तक वो डिलीवर नहीं हो जाएगा यूके में अपनी डेस्टिनेशन तक, अगर उसको कुछ होता है दैट विल बी कवर्ड अपॉन द सिंगल ट्रांजिट पॉलिसी। देन देयर कम्स अ मरीन डिक्लेरेशन पॉलिसी। अब मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, मेरी रिक्वायरमेंट है कि मैं पैन इंडिया सामान बेचता हूँ, और मैं कभी कभी रिक्वायरमेंट होती है तो बाहर भी बेचता हूँ। तो आपको क्या करना होता है, आपको एक इनिशियली एक असेसमेंट करते हो आप अपने बिजनेस का कि इस साल मैं इतना प्रोडक्शन करूँगा, मेरे पास 200 करोड़ के ऑलरेडी ऑर्डर्स अवेलेबल हैं। तो आप 200 करोड़ रुपए का एक सम इंश्योर्ड डिक्लेयर कर देते हो एक इंश्योरेंस कंपनी को कि आईएल को बोला आपने 200 करोड़ रुपए मेरे सम इंश्योर्ड है, और मेरा जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो मैक्सिमम वैल्यू 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, या जो भी आप अपनी तरफ से 10 करोड़ का ट्रांजैक्शन मैक्सिमम करूँगा। तो आपने बोला 200 करोड़ का सम इंश्योर्ड है, 10 करोड़ मेरा मैक्सिमम वैल्यू रहेगा। आप हर महीने 100 ट्रक भेजिए, 500 भेजिए। आपके पास ऑनलाइन पोर्टल होता है, आप वहाँ पे अपना डिटेल्स एंटर कर सकते हैं। आज मेरा 50 लाख का ट्रांजैक्शन गया तो 200 करोड़ में से 50 लाख कम हो जाएंगे, क्योंकि वो उतना कंज्यूम होगा, आपका प्रीमियम भी उतना ही कंज्यूम होता है। सो दिस इज़ द ओनली प्रोडक्ट मरीन इंश्योरेंस वेर इन यू पे द प्रीमियम। आप जितना यूज़ करोगे आप उतना पे करोगे। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस प्रोडक्ट। आपने आज 10 करोड़ का ट्रांजैक्शन भेजा, 200 करोड़ में से 10 करोड़ कम हो जाएंगे। नाउ यू हैव लेफ्ट विथ 190 करोड़। आपने दूसरा कंसाइनमेंट 120 करोड़ का भेज दिया, सो यू हैव कंज्यूम 30 करोड़ फ्रॉम योर बिजनेस। वो माल सही सलामत पहुंच गया। सपोज बाय मीन्स ऑफ एनी रीज़न कि अगर आपका कंसाइनमेंट का जो ट्रक जा रहा था एक्सीडेंट होने की वजह से पलट गया, टॉपल हो गया किसी और ट्रक के साथ या ट्रेलर के साथ या रेलिंग के साथ, वो टकरा गया, या उसमें चोरी हो गई, या उसको रास्ते में रोक के किसी ने लूट लिया, रॉबरी कर ली, या उसमें कोई एक्सीडेंट होने की वजह से फायर हो गई, बिकॉज ऑफ एनी रीज़न रास्ते में राइट्स धरना चल रहे थे, लोगों ने आपके गाड़ी का सामान जला दिया। सो देयर आर न्यूमरस थिंग्स। अगर उसको कुछ होता है तो इट गेट कवर्ड्स अंडर द मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी। और जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया था, देयर आर वेरियस क्लॉजेस। जब हम आपसे डिस्कशन करते हैं, आपका बिजनेस समझते हैं, तो हम आपको एडवाइस करते हैं आपको मरीन इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में कौन कौन से क्लॉजेज लेने चाहिए। जैसा मैंने बताया कंसील्ड डैमेज, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल क्लॉज। कंसील्ड डैमेज सेज कि मेरा मटीरियल सूरत से चला, पूना पहुंचा, कंटेनर के अंदर बंद है, कंटेनर में कोई डैमेज के साइंस नहीं है, बट जब मैंने कंटेनर ओपन किया, मटेरियल निकाला, वो डैमेज था। आप बोलोगे कैसे पॉसिबल है? जब कंटेनर में कोई डैमेज नहीं है, कंटेनर का सील मेरे सामने ओपन हुआ है, कंटेनर मेरे सामने खुला है, तो अंदर से मटेरियल डैमेज कैसे निकल सकता है? तो उसकी फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन इंश्योरेंस कंपनी बैकएंड पे करती रहेगी, बट अंडर द कंसील्ड डैमेज क्लॉज वो आपको क्लेम पे कर देगी। देन देयर इज अ सील इंटैक्ट क्लॉज। कंसील्ड डैमेज क्लॉज में फिर टाइम लिमिट दी जाती है, 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन। तो अगर आप ज़रूरी नहीं है कि वो कंटेनर आ जाए तो आप उसको आज ही खोलोगे। प्रोजेक्ट कार्गो के अंदर कई बार होता है मटेरियल आ जाता है, फिर उसको गोडाउन के अंदर रखवा दिया जाता है या यार्ड में रखवा दिया जाता है। जिस समय उसकी रिक्वायरमेंट होती है उस समय उसको ओपन किया जाता है, और उस समय जब उसको टेस्ट करते हैं तो पता लगता है कि इसमें कुछ खराबी है, इसमें कुछ डैमेज है। तो आपका जब मटेरियल रिसीव हुआ उस दिन आपने उसे चेक नहीं किया, यू हैव चेक्ड इट एट अ लेटर डेट, तो उस समय भी जो क्लेम होता है इट गेट पेड अंडर द कंसील्ड डैमेज क्लॉज। So what do we understand about the liability? मेरी वजह से किसी को कुछ हुआ तो वो मुझे कोर्ट में घसीटेगा, कोर्ट में घसीटेगा तो कोर्ट मुझे कुछ ऑर्डर करेगी कि आपको इन्हें इतना कंपेंसेशन देना है, तो वो कंपेंसेशन जो पे होगा दैट गेट्स कवर्ड अंडर दिस लाइबिलिटी पॉलिसी। नाउ वी हैव डिफरेंट प्रोडक्ट्स इन द लाइबिलिटी पॉलिसी। वी हैव CGL, DNO, साइबर, PI। व्हाट इज CGL? कमर्शियल जनरल लाइबिलिटी। आप सपोज आई एम मैन्युफैक्चरिंग अ क्रीम, मेरे फॉर्मुलेशन में कुछ गलती हो गई, और जब वो क्रीम मार्केट में गई उसने लोगों को, जब लोगों ने उसे चेहरे पे लगाया तो लोगों को रैशेज आ गए, किसी को स्किन पे कुछ डिजीज़ हो गया, तो वो क्या करेगा? फट से जाके कोर्ट में मेरे खिलाफ एक सूट फाइल करेगा। अब आपको डिफेंड कौन करेगा? आपकी
डिफेंस कॉस्ट, आपकी PR कॉस्ट, आपकी गुडविल, ब्रांडविल, एवरीथिंग इज़ एट द स्टेक. देन कोर्ट ऊपर से जो अवार्ड करेगी वो भी आपको कंपनसेशन देना है, डिफेंस कॉस्ट भी देना है, PR क्राइसिस मैनेजमेंट कॉस्ट भी देना है. दैट गेट कवर्ड अंडर द CGL. आपका एम्प्लॉय अपने बिजनेस पार्टनर या आप जिसको आप मटेरियल दे रहे हो वहाँ पे किसी कारणवश या बिजनेस रिक्वायरमेंट की वजह से जाता है, उसकी गलती की वजह से वहाँ कुछ डैमेज हो जाता है, दैट गेट्स ऑल्सो कवर्ड अंडर द CGL पॉलिसी. इफ एनीथिंग हैपन्स लाइक प्रॉपर्टी डैमेज और बॉडीली इंजरी, दैट गेट कवर्ड अंडर द CGL पॉलिसी. प्रोडक्ट कंप्लीटेड ऑपरेशंस, रिकॉल ऑप्शंस, प्रोडक्ट रिकॉल करना पड़ा, मैगी ख़राब बन गई थी, उसके मसाले के अंदर कुछ लेड पाया गया, पूरा रिकॉल करो. इस तरह के भी ऑपरेशन CGL में प्रोडक्ट कंप्लीटेड ऑपरेशंस एंड रिकॉल ऑप्शंस आर प्रोवाइडेड अंडर द सच पॉलिसीज. देन देयर कम्स DNO, डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स लाइबिलिटी. बीइंग डायरेक्टर और ऑफिसर इन योर ऑर्गेनाइजेशन, CEO, डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, यू टेक सर्टेन स्टेप्स. आपके स्टेप्स की वजह से आपकी कंपनी का कुछ नुकसान हो रहा है और आपके कंपनी के खुद कुछ लोग अगर आपको सू कर रहे हैं, आपके स्टेप्स की वजह से जो आपके शेयर होल्डर्स हैं या जो आपके बिजनेस पार्टनर्स हैं वो ये बोल रहे हैं आपकी इस गलती की वजह से हमारे बिजनेस को नुकसान हुआ है, और उसमें जो अगर आपको सू कर रहे हैं तो वो all these things are covered under the DNO policies. Anything happening because of your statements, because of your actions regarding to the business, and if it is creating a damage to your business and a goodwill, और उसकी वजह से अगर कोई सूट फाइल होता है, that get covered under the DNO policy. Then cyber, we have a cyber insurance policy. The name itself explains what is the cyber about. So cyber insurance helps you. अगर कोई आपको डिजिटली विदहोल्ड कर लेता है, कोई आपका डिजिटल डेटा चुरा लेता है, तो उससे नेगोशिएशंस करना, डेटा छुड़ाना, डेटा लॉस, फोरेंसिक एक्सपर्ट की फीस, दैट ऑल गेट कवर्ड अंडर द साइबर इंश्योरेंस. देन ग्रुप हेल्थ. सो व्हाट इज ग्रुप हेल्थ पॉलिसीज? थोड़ा कुछ आइडिया. आप बिजनेस कर रहे हैं, आपके एम्प्लॉयज़ होंगे, किसी के 1000, किसी के 500, किसी के 2000, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द बिजनेस. आप उनको अपनी तरफ से एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी देते हैं टू कवर द एंटायर ग्रुप. अगर वही आदमी इंडिविजुअली मार्केट में पॉलिसी लेने जाता है तो वो उसको महंगी पड़ती है, वेरस जब वो ग्रुप फॉर्मेशन करके पॉलिसी लेते हैं तो वो उनको चीप लगता है. यू गेट द प्राइस बेनिफिट, यू गेट द कवरेज बेनिफिट, you get the pre-existing disease benefit from the day one. This is called group health insurance policy. So if you have new employees joining your company, अगर आप एम्प्लॉइज़ या जो फ्यूचर कमिंग एम्प्लॉइज़ होंगे वो इंक्लाइंड होंगे आपके ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने के लिए, देन व्हाट इज़ द हेल्थ सपोर्ट अवेलेबल? हमारी खुद की इंटरनल इन हाउस हेल्थ टीम्स हैं 24/7. हम लोग टाइम टू टाइम वेबिनार्स भी करते रहते हैं फॉर हेल्थ बीइंग. मेंटल स्ट्रेस या मेंटल हैरेसमेंट को, जो स्ट्रेस है, मेंटल प्रेशर है, उसको कैसे मैनेज करना है, मेंटल हेल्थ कैसे अच्छी रखी जा सकती है, हमारी फिज़िकल हेल्थ कैसे अच्छी रखी जा सकती है. तो क्लाइंट्स के लिए इस तरह के जो वेबिनार्स हैं वो भी हमारी कंपनी अरेंज करती है. देन देयर कम्स हाउ फास्ट द क्लेम्स आर प्रोसेस्ड. दिस इज़ द मोस्ट इम्पैक्टिंग पार्ट ऑफ दिस पॉलिसी. ठीक है, बेनिफिट्स और एड ऑन सब लोग देते हैं, बट आपके पास जब क्लेम आया तो कितनी जल्दी आप क्लेम सेटल करोगे, दैट ब्रिंग्स द ब्यूटी ऑफ दिस प्रोडक्ट. कोई अगर आदमी हॉस्पिटल में भर्ती है, उसकी फैमिली का स्ट्रेस अगर आपको देखना है तब आप देखो, और जब उसका क्लेम पे हो जाता है, किस खुशी से वो बाहर आता है, तो वो आपके एम्प्लॉय को आपके साथ जोड़ता है. दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस प्रोडक्ट. देन देयर कम्स हाउ टू गेट द हेल्थ कार्ड वेलनेस बेनिफिट. हमारा खुद का IL टेक केयर ऐप है. तो पहले के ज़माने में क्या होता था, पुराने ज़माने में, कि एक आपने हेल्थ पॉलिसी लिया, फिर वो कंपनी में जाएगा, सबका डिटेल जाएगा, 1-2 महीने बाद हेल्थ कार्ड प्रिंट्स होते थे, फिर वो आते थे. सो वी ओवरकम दिस लैप्स. कैसे? आप अपने एम्प्लॉयज़ को एक लिंक दे देंगे, आप ये ऐप डाउनलोड कर दीजिए, अपना एम्प्लॉय ID या अपना लॉगिन बनाइए, इसके अंदर बाय डेट ऑफ बर्थ, डेजिग्नेशन, सब उसके अंदर ऑटो फिल आपको मिलेगा. आप कहीं भी जाते हैं, आप वहीं से अपना हॉस्पिटल सेलेक्ट कर सकते हैं कि मुझे किस हॉस्पिटल में जाना है, आपको कौन सा हॉस्पिटल सबसे नज़दीक है, किस हॉस्पिटल में कौन सी फैसिलिटीज़ हैं, कितना बड़ा हॉस्पिटल है, कितना दूर है. आपका क्लेम फाइलिंग वहाँ से हो जाएगा,
आपका क्लेम प्रोसेसिंग वहाँ से हो जाएगा, आपको अप्रूवल भी आपके क्लेम के ऐप पे मिल जाएगा, आपका क्लेम सेटलमेंट भी आपको ऐप पे दिखेगा। और आपका जो डिजिटल कार्ड है वो भी इसी पे। अब आपको जा कर के अपना कार्ड नहीं ढूंढना पड़ेगा, रखना नहीं पड़ेगा संभाल के कि मेरी पॉलिसी कहाँ है, मेरा हेल्थ कार्ड कहाँ है। इट्स जस्ट अ सिंपल मोबाइल ऐप। मोबाइल सबकी जेब में रहता है आज की डेट के अंदर, वो डिजिटल कार्ड आपकी जेब में। आप कभी भी कहीं भी इस टेंशन से फ्री हैं कि मुझे हेल्थ कार्ड संभाल के रखना है, या ऐसे हैप्पीज़ार टाइम के अंदर आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। आप अपना मोबाइल ओपन कीजिए, लॉगिन कीजिए, हॉस्पिटल में दिखाइए, डिटेल्स रजिस्टर कीजिए टीपीए के पास, गेट द एडमिशन इन हॉस्पिटल एंड यू आर थ्रू द एंटायर क्लेम प्रोसेस। So, what are the proactive strategies for the risk mitigation? We have discussed about the different LOBs like property, engineering, marine, health, marine cargo. So these are the propositions. आपके पास अब फायर एक्सटिंग्विशर्स हमारे सामने रखे हैं, ये रखे हैं, बट आइदर वी आर अवेयर हाउ टू यूज सच डिवाइसेस। क्या इसकी डेट तो एक्सपायर नहीं हो गई? क्या मुझे इसे रीफिल तो नहीं कराना है? क्या मेरे प्रीमाइसेस में फायर लोड ज़्यादा है तो मुझे हाइड्रेंट यूज़ करना पड़ेगा, मुझे होज रील यूज़ करने पड़ेंगे, मुझे स्प्रिंकलर्स यूज़ करने पड़ेंगे? आप लोग समझते हैं स्प्रिंकलर्स क्या होंगे? देखिए, ये छोटा सा जो ऑरेंज स्पॉट जो दिख रहा है दैट इज़ स्प्रिंकलर। अगर यहाँ किसी भी तरह से फायर हुई वो एक्टिवेट हो जाएगा और सब तरफ पानी स्प्रे करेगा, उसकी वजह से अगर कोई भी फायर है तो वो बुझ जाएगी। दैट हेल्प्स टू प्रोवाइड द प्रोटेक्शन एट अ वेरी इनिशियल स्टेज ऑफ द एक्सीडेंट। अगर आप ऐसा करते हैं, इन चीज़ों पे इन्वेस्टमेंट करते हैं अलॉन्ग विद योर बिजनेस, सो आपका बिजनेस लॉन्गर रन के लिए हमेशा सेफ है। यू विल नेवर फाइंड अ डिस्ट्रेस अबाउट सच एक्सीडेंट्स। फिर मेरे ऊपर ये छोटा सा एक कप लग रहा है प्लास्टिक का, इट इज़ कॉल्ड स्मोक डिटेक्टर। किसी भी तरह की फायर नहीं दिख रही है बट कहीं से स्मोक निकल रहा है, इट विल डिटेक्ट द स्मोक एंड इट विल गिव यू द सायरन। सो ऑल दीज फैसिलिटीज़ बीन प्रोवाइडेड बाय द ICICI लोम्बार्ड एज वेल, जिसमें हम लोग आपको फायर बॉल्स, फायर एक्सटिंग्विशर्स बताते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क असेसमेंट करके देते हैं। आपकी फैक्ट्री में ICICI लोम्बार्ड का रिस्क इंजीनियर जाएगा, वो पूरी फैक्ट्री का, सर आई थिंक फोटोज जरा ओके सो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि जो रिस्क इंजीनियर होगा वो आपका पूरा असेसमेंट करेगा फैक्ट्री का। ही विल स्पेंड 2-3 आवर्स इन योर फैक्ट्री, ही विल विजिट ईच एंड एवरी कॉर्नर, ही विल विजिट एवरी सेक्शन ऑफ योर फैक्ट्री वेर इन ही विल फाइंड क्या क्या शॉर्ट कमिंग्स हैं, कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। वो एक रिपोर्ट बनाएगा, वो रिपोर्ट बना के आपको देगा कि आपको क्या इम्प्रूवमेंट्स करने हैं। फिर ये आपका चॉइस है कि आप उसको इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। बट एज एन इंश्योरेंस कंपनी, बीइंग योर बिजनेस पार्टनर, वी विल एजुकेट यू रिगार्डिंग द इम्प्रूवमेंट्स इन रिस्क। देन IoT, फायर हाइड्रेंट, इलेक्ट्रिकल, वी हैव इन हाउस patented products which can prevent such accidents. We also provide that products. देन मरीन कार्गो के अंदर हमारे पास टेलीमेटिक्स है, कार्गो इंस्पेक्शंस हैं, मरीन लॉस कंट्रोल मैनेजमेंट यूनिट है। उसके बाद साइबर के लिए हमारे पास साइबर सिक्योरिटी फैसिलिटीज़ हैं, टूल्स हैं जो ये देखती हैं कि आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वेदर दे आर वेरी मच सेफ और नॉट, जो आप फायरवॉल यूज़ कर रहे हो वो सही है कि नहीं है। देन देयर कम्स द इंजीनियरिंग, वही कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क असेसमेंट जो रिस्क इंजीनियर फायर का असेसमेंट करता है। सिमिलर वी हैव इंजीनियर्स हु डू रिस्क असेसमेंट फॉर योर इंजीनियरिंग सेक्शन। मशीन का एज कितना है, मशीन का मेंटेनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा, प्रिवेंटिव शेड्यूल मेंटेनेंस करते हो, प्रोएक्टिव मेंटेनेंस करते हो, क्रिटिकल स्पेयर्स अवेलेबल है कि नहीं है। सो इट डिपेंड्स कि आप अपने रिस्क को कितना ध्यान दे रहे हो, और अगर नहीं दे रहे हो तो वी विल टेल यू कि कहाँ पे स्कोप है, कहाँ पे इम्प्रूवमेंट का स्कोप है, कहाँ आपको करेक्शन मेजर्स लेने हैं। चेकअप हम लोग प्रोवाइड करते हैं। हमारे वैक्सीनेशन ड्राइव्स होते हैं। कोरोना में वी हैड वन ऑफ द बिगेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव्स बाय द इंश्योरेंस कंपनीज। देन OPD सेशंस हम लोग देते हैं। अलॉन्ग विद दैट और भी कई सारी फैसिलिटीज़ हैं विच वेन एवर यू विल रेज अ क्वेरी फॉर द GMC पॉलिसीज़, यू विल गेट टू नो कि हम लोग कौन कौन सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। आई एम ओपन टू आंसर योर क्वेश्चंस for your presentations. Now, we have a panel session is going to be moderated by Mr. Kaushik Chandra, founder and CEO at Connect. And I will request the
fellow panelists to please take a seat on dais. I will request Mr. Ravindra Tyagi, Intermediary, ICICI Lombard General Insurance Company Limited, Mr. Ramesh Shah, CMD, Excel Overseas Private Limited, Mr. Rahul Gupta, MD, Bharat Lubricants, and Mr. Yashesh Sampath, Director, Public Relations and Strategies Alliance, SME Insurance Promotion Council. Please take your seat on dais, and I will request Mr. Kaushik Chandra to take forward the discussions. Over to you, sir. Please give a big round of applause to the panelists. So without wasting any more time, I think we are running late on that, and so let's start this discussions because everybody is waiting to hear from all of you. And I would request, please introduce yourself for some time, so that the entire audience sitting out here can at least know what it is. Good evening, everyone. My name is Ravindra Tyagi, and I'm the Managing Director of Torque Insurance Brokers Private Limited. This is basically insurance broking house. We are a pan-India company having pan-India presence, and we deal in all sort of insurance products. Thank you very much. Good evening, everyone. I am Rahul Gupta from Bharat Lubricants. Basically, we are a manufacturer and exporter of all kind of automotive and industrial lubricants, and we are working pan-India. We are working since 1984. It's a second generation business. Thank you so much. Good evening, everyone. I'm Yashesh Sampath. I'm having 22, 23 years of insurance experience. And right now, we have set up an SME Insurance Promotion Council, where I'm the Director for Public Relations and Strategic Partnerships. Hello. Good evening. It's Ramesh Shah from Excel Overseas. We are more than 35 years into gems and jewelry business. We are mainly 100% exporter. We have a factory at SIPS at Sachin. We have more than 200 workers working at the present. That's our introduction. Thank you so much, sir. It is my privilege to sit, amongst all these stalwarts in their respective business domains, and I would like to continue with this, asking you a question, sir. How can innovative insurance solutions empower actually the MSMEs to build resilience against unforeseen risks? It's a really very good question. Abhi, friends, Hindi, English, किस में चलेगा? I think that would be convenient for everyone. हिंदी इंग्लिश क्या होता है ना, जब किसी को इंश्योरेंस की ज़रूरत पड़ती है तो पता चलता है कि इंश्योरेंस कितना उनको पता है क्या है. आज जो अंकित जी ने बताया कि क्या क्या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, सब लोगों को शायद फर्स्ट टाइम या काफ़ी लोगों को पता चला होगा कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से एसएमई को कितना बेनिफिट मिल सकता है और यह मिल रहा है. आज एक हमें याद है, हम पहले इंडस्ट्री को 10-10, 12-12 इंश्योरेंस पॉलिसीज़ दिया करते थे. फायर इंश्योरेंस पॉलिसी, बर्गलरी, मरीन, मनी, WC. अभी इनका जो एक बंडल प्रोडक्ट है एसएमई का, जो सुरक्षा कवच जो प्रोडक्ट है, उसमें सारी कवरेजेस एक ही पॉलिसी के अंदर आ जाते हैं. तो एक तो आपका टाइम बचता है, आपको कभी याद रखने की प्रॉब्लम नहीं है कि आपको पता है कि ये इस टाइम पे मेरा इंश्योरेंस आता है और मैं इस टाइम पे आपकी पॉलिसी. So basically you're referring to the one-stop shops, right? You get solutions everywhere. और उसमें बेसिकली क्या है कि आपको जो बेस प्रोडक्ट है, जो बेस पॉलिसी है, उससे ज़्यादा बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं. शायद आपने देखा होगा कि, और जो आईसीसी लोम्बार्ड जो जाना जाता है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट के अंदर इनोवेशंस हो, ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज दें, वो सारी चीज़ें इनकी प्रोडक्ट्स के अंदर रहती हैं. एड ऑन कवर्स आपको मिल जाएं, आपके लिए बेनिफिशियल, जैसे 25% अंडर इंश्योरेंस. हम सोच भी नहीं सकते थे कि आप एक तरीके से 25% प्रीमियम कम भर रहे हैं. आप इसका मतलब समझिए ना कि आपका 25% प्रीमियम कम करने के बावजूद भी आपको 100% का बेनिफिट मिल रहा है. Correct, sir. I mean, with the permission of the audience, what I will do, I will keep on rotating the questions with all the panelists so that we can hear from everybody and what are the views on it, right? So I am with Mr. Ramesh Shah. I would like to ask you a question that how do we integrate innovative risk management practices to protect your business in the gems and the jewelry sections? In gems and jewelry, when we do mainly export business, we are covered by the ACGC, and the stock which is in the factory or in the office, it is covered under the block policy.
So it helps quite a lot. And I would share my one experience during this COVID time. One of my very old customer, he failed, but I could get all the claims by ECGC. So in our business, mostly we have only these two, which helps for all to mitigate all the risk. Thank you, sir. With this, I shift to Mr. Arun, CMD Surya Life Sciences Private Limited. And the question to you is, what innovative risk management strategies do you employ to ensure the resilience of your pharmaceutical manufacturing operations? The question was for you. What innovative risk management strategies that would you like to employ to ensure the resilience of your pharmaceutical manufacturing charities? I'm sorry, it was Mr. Arun, right? I'll answer Yeah, for this. yeah. जनरली एमएसएमई में अगर हम बात करें, देखिए अगर इफ़ वी सी द एमएसएमई सेक्टर्स जनरली लॉसेस के बारे में अगर वी टॉक अबाउट द लॉसेस, एमएसएमई सेक्टर्स इज इस हाईली अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. So because of the negligence, we settle so many claims on yearly basis. So what we have seen, due to the negligence of the people, because all the employees in the organizations are unskilled, so they are not trained properly. So because of the unorganized sector and the negligence, we generally settle so many claims. So it is the requirement of the day that we have to educate the people who are working in our organization. They need to know what are the risk hazard. जो मिस्टर अंकित ने बताया कि आज हम जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उस इंडस्ट्री में क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व है. Either it is textile industry, pharmaceutical industry, oil industry, anywhere. Because of can anybody think एक छोटे से शॉर्ट सर्किट ने पूरा शिव शक्ति मार्केट ख़त्म कर दिया. अब इसके लिए हाँ, इंश्योरेंस में बहुत सारी चीज़ें हैं. जैसे इनके यहाँ आईसीसी लोम्बार्ड हैज़ गॉट अ वेस्ट फैसिलिटी, वैल्यू एडेड सर्विसेज, इन विच जहाँ पे ये लोग अपने इक्विपमेंट्स के थ्रू आपके टेम्परेचर वायर के अंदर कितना टेम्परेचर बढ़ रहा है, कैन यू अंडरस्टैंड. वायर आपको यू कैन नॉट फील दैट दिस वाटर इज हीटिंग, यू आर नॉट गोइंग टू टच इट, बट बिकॉज ऑफ दैट थर्मो जो गन आती है, बिकॉज ऑफ दैट it will show that temperature inside the wire is increasing, and in the future it may short circuit. If we go for such type of practices or such type of testing on regular basis, we can avoid such type of accidents, which generally we see most of the claims are happening due to short circuiting. And if we go for electrical audit, we can remove all such, risk hazard. And this goes overlooked sometimes, if we don't care about it so much in that case. So much. With this, I go back to Mr. Ramesh Shah again with the next phase of the questions. What strategies have you implemented to ensure the resilience of your business against market volatility? As such, with this new environment, especially this Trump's tariff and all, it is very difficult to analyze, because now for us 26% jump of import duty is such a huge that our business has almost like at a standstill at this moment. But time to time we manage our business having a pre-order before we take the order, and after we purchase the raw material. Like this we cover our risk and we manage our profit. But time being, it's very difficult to predict our industry after this Trump tariff and all. So at the moment, we also are under question mark how we shall mitigate this risk. So you are in a stage of still understanding how to get through that. Yes, because it's such a huge change that no one can absorb, because our industry is with a very thin margin. We have a large turnover, huge turnover, and margin is 3, 4, 5%. So 26% is too huge. So. But anyway, the diamonds, when we manufacture, some diamonds have a tension, so that we take a risk. I had manufactured one stone almost worth 90 crores, one stone.
and I took insurance from the IFCO Tokyo, who are my agent at this moment. Maybe after I will change to IL also. That's a good news. Let's see who is giving the best premium and all. Risk on the stone by stone also when it's a very risky stone. So we shall discuss with them. If they are more competitive, we will divert to them. Yeah, actually, he has indicated the stepping stones for that. Coming back to Arunji, I would like to ask you, how do you balance regulatory compliance with the need for innovation in the risk management? You see, this particular industry, as we talk about the regulation and all, in insurance, IRDA, IRDA is regulating entire industry, and from 1st January onwards, we have seen so many changes. Earlier, from up to 5 lakh, 5 crores premium, we were getting very good discounts in that. After that, above 5 crores, now the loading is is to that extent that now premium is increased by at least a double. Premium has increased. So just to have we have even talked to our Chamber of Commerce. We have talked to Government Finance Ministry. Regulation is there, but as far as industry is concerned, I am running an industry where I have made all the risk prevention measures I have taken, and the person who is running an industry, he doesn't have any feature, or he is running like anything, and both are treated the same way. So there should be some regulation in that. There should be a difference. One person should get a good discount on that. Other person should get loading on that. So everyone is, if everyone is treated that way, so there should be some difference. You mean to say there should be some discrimination, some type of operation of understanding on that? Yes, that should be there. Thank you, sir, for that. Coming back to the same format to Mr. Yashish. Question to you is, what are the most effective ways for MSMEs to integrate risk management into their business strategies? It's a good question. MSME को जो रिस्क मैनेजमेंट अपने डे टू डे बिजनेस में इन्वॉल्व करना है, तो इंश्योरेंस कंपनी को भी एक स्टेप आगे बढ़ाना पड़ेगा, राइट? आज इंश्योरेंस कंपनी रिस्क लिखती है आपका एक 50,000 रुपया, 1 लाख रुपया या 2 लाख का प्रीमियम फायर इंश्योरेंस का. बहुत कम लोग को पता है कि अगर कोई क्लेम आया तो उसका ऑलमोस्ट 80-90% इंश्योरेंस कंपनी अपनी जेब से देती है. उसका कोई री इंश्योरेंस उसके पास नहीं है. तो इंश्योरेंस कंपनीज के तरफ से भी आज बहुत सारे प्रोएक्टिव मेजर्स आ रहे हैं जहाँ पर वो लोग रिस्क मैनेजमेंट को एक नेसेसिटी करते हैं. पॉलिसी लिखने के पहले मुझे पता होना चाहिए ना कि मैं जो गोडाउन को कवर कर रहा हूँ या जो फैक्ट्री को कवर कर रहा हूँ वो एटम बॉम्ब पे है कि एक्चुअली एक रिस्क है. मेरे को प्रीमियम का आज रेस नहीं है इंश्योरेंस कंपनी को. और जो अभी सर ने पॉइंट बताया, ये हर कस्टमर का प्रॉब्लम है इंडिया में कि मेरा प्रीमियम बढ़ते जाता है. इंडिविजुअल कस्टमर है उसका बढ़ रहा है, कॉरपोरेट का प्रीमियम बढ़ रहा है. तो अपने को एज एन इंडियन कम्युनिटी ये समझना बहुत ज़रूरी है वो क्यों बढ़ रहा है. वो बढ़ रहा है क्योंकि हेल्थ केयर के कॉस्ट बढ़ रहे हैं. 15% का तो इन्फ्लेशन है इंडिया में हेल्थ केयर का. तो इंश्योरेंस कंपनी कहाँ से देगी पैसे? इंश्योरेंस लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स पे वर्क होता है. सब ने यहाँ पे पॉलिसी दी तो कुछ लोग का क्लेम आएगा. वो 1-2 जन ने ही सोच के पॉलिसी दी तो वो क्लेम वाले ही है. दूसरा, नेचुरल कैलामिटीज़ आप देख रहे हो इंडिया में और ग्लोबली बढ़ते जा रहे हैं. इंसिडेंसेस बढ़ते जा रहे हैं. तो इंश्योरेंस कंपनी की बैलेंस शीट से इम्पैक्ट हो रही है. और थर्ड, आज इंश्योरेंस कंपनी कभी लिस्टेड नहीं थी, वो आज लिस्ट होने लग गई है. ICICI लोम्बार्ड लिस्टेड है, बजाज है, गो डिजिट है, न्यू इंडिया है, GIC है, और सारी कंपनियां अभी आएंगी नेक्स्ट 3 साल में लिस्टेड. तो जब स्टॉक मार्केट में कंपनी लिस्ट होती है तो आपका और मेरा पैसा लग रहा है इसमें एज अ शेयर होल्डर. तो कॉरपोरेट गवर्नेंस बढ़ते जाता है. जो पहले चलता था कि मैं जानता हूँ आपको और मैंने आपको करवा दिया पॉलिसी, आज शेयर होल्डर्स बोर्ड को क्वेश्चन करते हैं.
तो इंटीग्रेट करने के लिए जो सर का सवाल है, एक तो जो मैं अगेन कह रहा हूँ, खुद को सोच बदलनी पड़ेगी। एक फीडबैक लेते हैं, जितने अब 101 जन होंगे अभी यहाँ पर, किनके पास वो सभी पॉलिसीज़ है जो ICICI लोम्बार्ड ने बताई, फायर, मशीनरी ब्रेकडाउन, आपके सामने आंसर है, एक आदमी। तो बाकी लोग के पास तो अवेयरनेस ही नहीं है। इंडिया का प्रॉब्लम वही है कि अवेयरनेस नहीं है। जो बेचते हैं वो समझा ही नहीं सकते, और जो हम समझना चाह रहे हैं वो कवर ही नहीं होता है। तो ये विशियस सर्कल है। तो इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका है, एज अ कंज्यूमर सोच बदले। आज SME चेम्बर्स के थ्रू इतने सारे इंश्योरेंस कंपनीज के रीच आउट होते हैं हमें प्रपोजल्स, कि हम SMEs के लिए यूनिक प्रोडक्ट लाना चाह रहे हैं, यूनिक फीचर्स देना चाह रहे हैं। जो रिस्क मैनेजमेंट बताया ICICI लोम्बार्ड ने, दे आर वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री। मतलब आई एम न्यूट्रल पर्सन, उनसे बेटर कोई नहीं है जो कस्टमर के लिए सोच रहा है। नेशनलाइज कंपनीज भी है और प्राइवेट भी है, और जो वो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आपको दिख रहा है। कोई और कंपनी ये नहीं बताएगी आपको कि हम इतनी सारी चीज़ें करेंगे। एंड ट्रस्ट मी, आई एम नॉट बीइंग टोल्ड टू एंडोर्स ICICI लोम्बार्ड, ये अनबायस्ड फीडबैक बता रहा हूँ। तो इंश्योरेंस कंपनी के साइड से भी आप कहीं पे भी पॉलिसी लो, SME चेम्बर्स के थ्रू लो, ICICI लोम्बार्ड के थ्रू लो या इफ्को टोक्यो के थ्रू, अपनी इंश्योरेंस कंपनी को पहले पूछो तो सही कि वो आपके लिए क्या इन्वेस्ट कर रहा है रिस्क मैनेजमेंट में। क्या वो साल में एक बार इंस्पेक्शन करेगा? क्या आपके लोगों को और आपके वो फैक्ट्री का मैनेजर जो चेक काटता है इंश्योरेंस का, उसको समझाएगा कि क्या करना चाहिए? क्या आप पॉलिसी पढ़ रहे हो, उसमें कंडीशन क्या लिख के आ रही है? कि आप बस उसको एक कॉस्ट देखते हो, यार ले चल पॉलिसी बना दे, अपना काम हो गया, तूने भाव कम करवा दिया ना। भाव नहीं है एवरीथिंग। अभी वो 10-1,000 रुपया बचा के आप कुछ अचीव नहीं करोगे। वो 10,000 ज़्यादा दो तो कोई भी अनटूवर्ड रिस्क आएगा तो आप प्रोटेक्टेड रहोगे। सो इंटीग्रेट करना है मुझे अगर अपने बिजनेस को एज एन SME एक इंश्योरेंस के पर्सपेक्टिव में, तो मुझे और मेरे इकोसिस्टम को ये चेन लाना बहुत ज़रूरी है। सर एक इंडस्ट्री के MD है, सर एक इंडस्ट्री के MD है, क्या वो लॉबी आ रही है क्या साथ में मिल के करने के लिए? आप कोई और इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, आप कोई और इंडस्ट्री के हो, तो कलेक्टिवली अगर लॉबी होती है तो रिस्क स्प्रेड होता है। तब जाकर इंश्योरेंस कंपनी को कोई नंबर दिखता है, टारगेट पूरा करने के लिए नहीं, रिस्क स्प्रेड करने के लिए। तब इंश्योरेंस कंपनी आप में इन्वेस्ट करेगी, तब वो रिस्क मैनेजमेंट करेगी, तब आपको जो आपका मन चाहा प्राइस चाहिए प्लस माइनस 10, 20, 30% जो भी, वो आपको तब मिलेगा, क्योंकि तो इंश्योरेंस कंपनी इन्वेस्ट करेगी। I think this is a wonderful insight about how important is that insurance inside it. But the only point is that the more we understand it, are we ready to accept it or not? That's the main thing, which I think you brought up the question, the awareness part. Going back to Rahulji, I mean a question to you: how do you ensure that your risk management at your organization support the long-term resilience and growth of your business? Our risk management framework is aligned with our long-term strategic goal. We focus on diversification both in our product portfolio and our market to reduce dependency on any single segment. जैसे कि हम लोग 300 प्लस प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो सिंगल प्रोडक्ट पे हम लोग डिपेंड नहीं रहते हैं। और अलग अलग मार्केट सेगमेंट की हम बात करें तो ऑटोमोटिव सेक्टर है, एग्रीकल्चर है, फिर उसके बाद में आप ये इंडस्ट्रीज़ हैं, इन सब को हम लोग कैटर करते हैं। उसके साथ साथ वी कंडक्ट रेगुलर रिस्क असेसमेंट एंड सिनेरियो प्लानिंग टू स्टे प्रिपेयर्ड फॉर अनसर्टेनिटी। जहाँ पे हमारी फैक्ट्री इंश्योरेंस आता है, हेल्थ इंश्योरेंस आता है, वर्कर्स की हेल्थ इंश्योरेंस आता है, वो सब भी हम चीज़ें रेगुलर बेस पे उसको करते रहते हैं, जिससे कि कभी भी कुछ ऐसी घटना हो तो उसके लिए हम तैयार होने चाहिए, ना कि घटना होने के बाद हम उस चीज़ के लिए तैयार हों। प्री असेसमेंट प्री असेसमेंट हम लोग करते हैं। Investment in employee training, adopting automation and maintaining strong relationship with supplier and distributors
are integral to our resilience strategy. These efforts ensure that we not only withstand challenges but also turn them into opportunity for growth. This is what we do. Thank you. I have a question for ICICI Lombard itself. What role does technology play in developing risk management solutions tailored for MSMEs? Pinpoint questions on today's generation kind of things. So, the technology plays a very pivotal role in today's world. किसी ने 10 साल पहले नहीं सोचा था कि आज मोबाइल के बिना हमारे जीवन चलेगा नहीं. आज एक सेकंड भी ऐसा नहीं होता है कि जो मोबाइल हम लोग भूल जाएं. ठीक है. So without that, this is not possible. So lot many in technological development which has been gone into, be it into health segment, be into fire segment or property kind of segment, lot of improvements about the risk, as this all gentlemen are saying that how the risk can be improved. So technology has played the very pivotal role. And going forward, if you will see some of my products, Ankit has told that AI has enabled. So 1.65 lakhs claim of health insurance gets settled within 30 seconds in my company. That's a huge. You know, nobody can just think about that कि उसके पीछे कोई आदमी खड़ा हो और वो अप्रूवल करे उसके अंदर में आपके पीछे, तो आपको कब आपका 1.5 लाख आदमी का अप्रूवल मिलेगा हेल्थ के अंदर में. So that is how what we have created into the system, that is the AI enabled. AI enabled court system has been developed. AI enabled claim settlement system has been enabled. AI system for the inspection of the plants, that has also been developed right now. So I have a classic example. During the COVID time, the first day of COVID, when India got shut down, okay, we had a huge claim at Vapi. Okay, so how, and that was not impossible for anybody to travel and to get the claim settlement, and that the claim amount was in a huge, in the crores of the amount. So we, as a technology, what we did was that we developed a drone, and by drone we did the survey, and the claim was settled within 30 days of in the COVID period. That is how. That's really fabulous, I think, for a mark for you. That's really that is how technology is taking shape in insurance right now. And within this industry, I would say none of the companies, I should not name it, but all the companies are not putting their money in the technology. We as a Lombard are putting our 2% of our total gross premium into the technology development. So that is a huge investment what we are doing right now. Thank you. Today's investments can be. स्टेप इन 5 साल पहले आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का एक इवेंट हुआ था बॉम्बे में. वहाँ इनके अर्लियर सीएमडी भार्गव दास गुप्ता जी ने ये एआई के ऊपर एक प्रेजेंटेशन दिया था, ओके, इंडस्ट्री को, और बोला था कि मैं ये एक सोच है हमारी एज अ ग्रुप कि हम एआई के थ्रू क्लेम्स को डिजिटलाइज करना चाह रहे हैं मेडिकल के. तो 99% ऑफ द इंडस्ट्री है ना, बोले ये क्या बात कर रहा है सीएमडी, और उन्होंने बोला था मैं आपको एज अ कंपनी करके दिखाऊंगा. एग्जैक्टली 5 years what this gentleman is saying is absolutely bang on. आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने 5 साल पहले Kudos किया था. Absolutely kudos for that. और जो आज तकलीफ है ना इंडिया में, 9 घंटे लोगों को हॉस्पिटल में बैठना पड़ता है डिस्चार्ज होने के बाद अप्रूवल के लिए, या कैशलेस का अप्रूवल लेने के लिए भी 4 से 5 घंटे जाते हैं. वो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने सॉल्व किया, और उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं. Nothing comes free. Nothing comes free. Ramesh ji, I mean, I have one more question for you for this evening. That can you discuss a specific instance, कोई एक instance है where your risk management approach helped your company to overcome a big challenge, major challenge? Yeah, I think I told you also before that during COVID time, it was the claim of around 7 crore, and it got passed after ECGC with a lot of paperwork and all. So that could save us, and then we were at a relief. But without insurance to work in our trade is very difficult today. And as sir said very correctly, I will tell you honestly my view before 20 years back. When we talk about the insurance, I said cost क्यों बढ़ाने का है, इंश्योरेंस का खर्चा लगेगा, कॉस्ट बढ़ेगा. सो वी वर टेकिंग दिस एज ए एक्सपेंस. बट टुडे माई सोच हैज़ चेंज, एंड इट इज़ एन इन्वेस्टमेंट
Without insurance, like we were even careless for taking our own health insurance also. अरे हेल्थ अपने को क्या होने वाला है, क्यों हेल्थ लेने का, क्यों प्रीमियम देने का. सो एज यू सेड दैट सोच हैज़ टू चेंज. Without insurance today you cannot step one feet, you know. So it is the most important, and that saved me. If that insurance was not there, then maybe I was not here today. So insurance is the, as he said, roti, kapda, makan and insurance. I agree with him. Thank you. Coming back, sir, to you, the question to you is, can you also provide an example of how your company has used insurance to mitigate the risks? Mitigate. Basically, it's a broking house, but apart from that, myself being an engineer, we have a separate company, Next Gen Risk Management. जो हमारी कंपनी है नेक्स्ट जन रिस्क मैनेजमेंट, वो डील करती है इंडस्ट्री के पूरे के पूरे सिस्टम्स चेक करके हम फायर लोड चेक करते हैं. तो जनरली क्या हो रहा है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, लोग जाते हैं फैक्ट्री में बैठते हैं, उनका इंश्योरेंस किया, कितना फायर इंश्योरेंस में कितना बिल्डिंग लेना है, कितना स्टॉक लेना है, कितना आपका मशीनरी की वैल्यू लेनी है, इंश्योरेंस कंप्लीट हो जाता है. हमारा क्या है कि हम लोग अपनी जो एक मेरा दूसरा विंग है, या हम बात कर सकते हैं हमारी कंपनी की सिस्टर कंसर्न कंपनी है, हम ये चाहते हैं कि हमारा जो क्लाइंट है उसके यहाँ कभी भी एक्सीडेंट ही ना हो. क्या कर सकते हैं उसके लिए हमने अपने उस सिस्टर कंसर्न कंपनीज को कि हमारे हर क्लाइंट में आप रिस्क इंस्पेक्शन करो. रिस्क इंस्पेक्शन के बाद उनको कन्विंस करो. एमएसएमई की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि भाई कंपनी छोटी होती है तो उसको हर चीज़ अपने फंड को ध्यान में रखते हुए करना पड़ता है. तो हमने उनके लिए ऐसे सिस्टम्स डिज़ाइन किए हैं कि भाई आपके यहाँ हम जैसे आपका एसएमसी है, कॉरपोरेशन ने फायर एनओसी का बीच में बहुत ज़बरदस्त की हुई, आपकी इंडस्ट्री में फायर एनओसी होना चाहिए, विदाउट एनओसी आपका लाइसेंस का रिन्यूअल नहीं होगा, ये सारी चीज़ें. हमने क्या किया कि आपकी कॉरपोरेशन के सारे के मापदंड को ध्यान में रखते हुए हमारी जो कंपनी है वो उनके यहाँ उनके पूरे रिस्क हजार्ड को ध्यान में रखते हुए उनके यहाँ पे कितने पॉइंट्स होने चाहिए, कितना सिस्टम्स स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, वो हम बना के देते हैं. वो हमारे यहाँ से हमारी कंपनी उनको इंस्टॉल करके देती है, उसका एएमसी देती है. और लगभग 100 इंडस्ट्रीज़ में मेरे बनाए हुए सिस्टम लग रहे हैं. एंड यू वुड बी सरप्राइज, पिछले 5 साल में एक भी क्लेम उस फैक्ट्री के अंदर नहीं आया है. एक भी क्लेम नहीं आया. तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इंश्योरेंस के साथ साथ हम ये कोशिश करते हैं कि हमारा जो क्लाइंट है वो एजुकेट हो, उसके यहाँ लॉसेज ना आए, क्योंकि एक अगर बड़ा लॉस आ गया तो इंडस्ट्री कई साल पीछे चली जाती है. हमने लोगों को बर्बाद होते हुए देखा है, बिजनेस से नौकरी करते हुए देखा है. तो ये सिनेरियो को देखते हुए हमने सिस्टम ये बनाया कि भाई वी शुड डू रिस्क मैनेजमेंट आल्सो. उसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लाइंट्स के लिए हम क्या कर सकते हैं. हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट उनके एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देते हैं. डे नाइट उनकी जो टीम है, जो इंजीनियरिंग स्टाफ है, उनके सिक्योरिटी की जो टीम है, उनके मैनेजमेंट के लोग हैं, डे नाइट के उनको ट्रेन करते हैं कि इन केस ऑफ फायर, इन केस ऑफ एक्सीडेंट क्या होना चाहिए, कैसे आपको इवैक्यूएट प्लान करना चाहिए. वो सारी की सारी चीज़ें हमारी कंपनी में की जाती हैं. और इट इज़ अ पार्ट ऑफ अवर इंश्योरेंस. तो हम अपार्ट फ्रॉम इंश्योरिंग द पीपल, इंश्योरिंग द इंडस्ट्री, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है कि उस इंडस्ट्री में हम उसका रिस्क मैनेज कैसे करें. That's a real good thought for the industry itself. So with this, यशस जी आपका पास फिर वापस आ रहा हूँ मैं. With the question is that what future trends in risk management in the future and insurance do you believe will benefit the MSMEs the most? In the benefiting MSMEs for risk management wise, as I mentioned earlier, something as a fixed add-on from every insurance company whenever they are offering any MSME or SME policy, that जैसे वो AMC होता है ना साल का, वैसा कोई एक ट्रेंड आना बहुत ज़रूरी है MSME के लिए कि हम लोग आकर साल में एक बार आपका चेकअप करेंगे आपके बिजनेस के प्लांट का, जो प्रीमियम में एक बहुत छोटा अमाउंट हो सकता है. एंड फ्रॉम एन इंश्योरेंस कंपनीज पर्सपेक्टिव वो बहुत ज़्यादा सेविंग है क्लेम को बचाने के लिए. So I see a trend coming up in the near future is insurance companies will heavily invest into risk management and offer
a freebie that this is by default we are giving to every MSME who is doing this. हम हर 3 महीने 6 महीने आकर आपको एक AMC की तरह नॉक करेंगे, बताएंगे प्लान सही है कि नहीं है, ऑब्जेक्टिव प्लान सही है कि नहीं है वो है, बट बैकएंड में इंश्योरेंस कंपनी का ऑब्जेक्टिव है कि रिस्क बिगड़ा है तो कैसे सुधरेगा. पहले से ही प्रिवेंटेटिव हेल्थ केयर है ना, वो डॉक्टर के पास हम जाते हैं चेकअप कराने, तो डॉक्टर साउंड करता है ना कि ये खाना कंट्रोल करो, शुगर कम करो, नहीं तो आप बॉर्डर पे हो. तो ये ट्रेंड इस बिजनेस में आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक्सपोजर फॉर इंश्योरेंस कंपनी इज़ वेरी हाई. एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जो सर ने बताया, सर का एक्सपीरियंस हुआ, इंसिडेंट हुआ तो क्लेम आया, तो आज ट्रस्ट है, और ट्रस्ट में आज 5 साल तक सर ने कोई पॉलिसी रिन्यू ही की होगी, कभी बंद नहीं की होगी. वो बोलेंगे कुछ भी हो जाए वो पॉलिसी पहले करना क्योंकि मेरे को क्लेम मिला है. तो आई सी अ सिनेरियो वेयर MSMEs विल ऑल्सो ग्रेजुअली रिस्क मैनेजमेंट की तरफ भी खुद खर्चा करेंगे, ओके, और इन्वेस्ट करेंगे अपने लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करने. क्योंकि प्रॉब्लम MSMEs का इंडिया का एक ही है, कॉस्ट. जो 4% की मार्जिन है, मैं आपसे 25% का खर्चा मांगूंगा तो आप देने ही नहीं वाले आपके बिजनेस में से. आप बोलोगे जो होगा वो देखा जाएगा, 20 साल में नहीं हुआ तो 21वें साल क्या होगा. इनको थोड़ी पता था कि ट्रम्प 21वें साल में ये करेगा. इट हैज़ कॉट देम बैक फुट पे इन एंटायर वर्ल्ड रादर. तो कहीं पे कंटिंजेंसी प्लानिंग MSMEs को करना भी ज़रूरी है अपनी तरफ से कि भाई मैं रिस्क के लिए इतना अलोकेट करता हूँ, इंश्योरेंस के लिए ये अलोकेट करता हूँ. सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे इंश्योरेंस कंपनीज को और लॉबी को भी ये हाथ बढ़ाना ज़रूरी है फॉर द MSMEs दैट ये हम डिफ़ॉल्ट देना चाहेंगे आपको, आप पॉलिसी लो. और साथ में लॉबी ओवरऑल खुद भी ऐसे ट्रेंड्स प्रैक्टिसेस लाए, लाइक फायर प्रोटेक्शन सिस्टम्स या हैज़ॉप एनालिसिस, हज़ार्ड एनालिसिस, ये सब रिस्क मैनेजमेंट के थोड़े टेक्निकल टर्म्स और फैसिलिटीज़ है, और लॉबी ये इम्प्लीमेंट करे तो इट विल बेनिफिट द इंडस्ट्री एज अ होल एंड सेव लॉट ऑफ इकोनॉमिक लॉसेस. श्योर, बहुत सही इन्होंने पॉइंट बताया. एक्चुअली और एक जो चीज़ हम लोग देख रहे हैं, जो MSME सेक्टर के अंदर हमारी जो खुद की इंटरमीडियरी है या हमारे जो एजेंट्स हैं, उनके कई बार नॉलेज ना होने की वजह से भी हमारे MSME सेक्टर के अंदर लॉस के टाइम पर लोग बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते हैं. उनको जानकारी कम होने की वजह से, प्रॉपर पॉलिसी लेने की वजह से. तो हमारे एज ए इंश्योरेंस कंपनी लाइक ICICI, लोम्बार्ड या दूसरी, हमारे इंडस्ट्री या बड़े रिस्क में या MSME सेक्टर के अंदर जो एजेंट्स काम करते हैं उनको भी शार्पन करने की बहुत ज़रूरत है. क्योंकि अगर उनकी नॉलेज लिमिटेड है तो कम नॉलेज जो है वो बहुत ख़तरनाक होती है. अगर नॉलेज लिमिटेड है तो उनको या तो इंश्योरेंस नहीं करना, वो हम तो बोल नहीं सकते हैं किसी के लिए, लेकिन आप उनको बताएं कि भाई किस तरीके से आपको वैल्यूएशन पे ध्यान रखना है, किस तरीके से रिस्क अंडरराइट करना है, आपको कौन सी इंडस्ट्री को किस कैटेगरी में लेना है. कई बार ऐसा देखा जाता है कि रिस्क का कैटेगराइजेशन ही गलत ले लिया. आपने जो पॉलिसी ली है वो पॉलिसी उस इंडस्ट्री के लिए है ही नहीं, वो कैटेगरी नहीं है, उसके चलते उसका बेचारे का क्लेम अटक जाता है. तो बहुत सारी चीज़ें हमें आपस में मिलके हमारी जो इंटरमीडियरी है उसको भी आगे बढ़ के एजुकेट होने की ज़रूरत है. आपको भी उनको एजुकेट करने की ज़रूरत है, तभी जाके. और MSME का खुद का सोच भी चेंज करने की ज़रूरत है कि इंश्योरेंस उतना ही ज़रूरी है. शिव शक्ति मार्केट में यू वुड बी सरप्राइज्ड, more than 70% traders were not having insurance policy. और जो 30% में थे उसमें 20% से ज़्यादा की, जैसे भाई साहब ने बताया, बैंक लोन की वजह से पॉलिसी थी, उनको तो पता ही नहीं था. ये कितनी बड़ी खामी है हम लोगों के अंदर. रात दिन हम देख रहे हैं, उसके बाद भी हम लोग इंश्योरेंस को इतना लाइटली लेते हैं. बैंक ने लोन कराया होगा, CCOD दी होगी, उसके लिए पॉलिसी आ गई, ही वॉज नॉट हैविंग. कुछ लोगों का प्रॉब्लम ये हुआ कि लॉस आया है लेकिन पॉलिसी पुराने एड्रेस पे चल रही है, कुछ 6 महीने पहले उन्होंने लोकेशन चेंज किया. इतनी कम अवेयरनेस नहीं चलेगी आज की तारीख में. MSME सेक्टर को या छोटे बिजनेसमैन को भी बहुत ज़्यादा अपने आप को इन सब चीज़ों के लिए जागरूक करने की जरूरत है. इस पर एक पॉइंट कहना चाहूँगा. एट SME इंश्योरेंस प्रमोशन काउंसिल
हमारा ये काउंसिल फॉर्म करने का क्या ऑब्जेक्टिव था, जो सर ने बताया या सर ने जो एक्सपीरियंस किया क्लेम्स, राइट, एडवाइजरी and claims assistance. These are two core things which at SME Insurance Promotion Council we have thought that we want to educate it. तो आज जाने के बाद घर नेक्स्ट एक हफ्ते का टाइमलाइन आप इंडिविजुअली खुद एज अ बिजनेस ओनर लीजिए, अपने अकाउंटेंट, अपने एजेंट, अपने ब्रोकर, उनको बोलो तू पॉलिसी दिखा मुझे कि तूने मेरी क्या पॉलिसी की है। अपने अकाउंटेंट को पूछो कि उसने क्या वैल्यूएशन पे पॉलिसी निकाली है, और बोलो कल 5 करोड़ का क्लेम आया, 10 करोड़ का क्लेम आया तो मुझे कितना मिलेगा। ये एक्टिविटी है ना, जितने भी एजेंट ब्रोकर के थ्रू पॉलिसी ली है ना, पहले आप खुद वो करो। ट्रस्ट में आप शॉक हो जाओगे जब वो बोलेगा ये कवर ही नहीं है, या आपका अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा जो नेचुरल है। सब चीज़ें नहीं पता होती है कस्टमर को, या उसका ही अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा। ये आप करके देखो, एंड देन नेक्स्ट स्टेप जो हम लोग सजेस्ट कर रहे हैं, डू शेयर द पॉलिसीज टू द SME चेम्बर्स एंड द रेलेवेंट टीम। वी विल एडवाइस यू व्हाट इज गुड फॉर यू, वेयर इज द गैप, एंड देन वील टेक इट फ्रॉम देयर ऑन स्टेप बाय स्टेप। Very good discussions about it. Coming to Rahul ji, I mean, it's a very, very important question and which will give us a lot of insight about it. Can you share a case where effective risk management actually supported the, navigate a very significant disruptions जो आपका company में हुआ है कभी? Certainly, during the COVID-19 pandemic, our operations were severely tested. Disruption in logistic and supply chain posed a major threat. However, due to our earlier risk assessment, we had already diversified our supplier base and maintained safety stock to critical raw materials. Moreover, our comprehensive insurance coverage for business interruption allow us to manage financial losses during the temporary production halt. This holistic approach enables us to resume operations swiftly and continue serving our client without compromising on quality or timelines. This is what we did. Thank you, sir. One question for you. This is a very, very important question and got a lot of relevance in today's discussions is that, can you share some examples how ICICI Lombard has helped MSMEs navigate and recover through significant transitions? So, first of all, if you all have seen the PPTs, there is one slide which was given under the press release. So, first of all, we have taken a step. Nobody in an industry has taken a step to give you the claim settlement clause of 10 days. So, for MSME, it would be an immediate basis claim settlement will be happening upon. And the second part would be that on those parameters, the majority of the claims which MSME falls into, that is on the fire segment, and for the STFI, means the perils, I would say, the perils which trigger on the pond. So from our side, we have a commitment with an SME Chamber of India and association also. So rest assured, from the Lombard side, all the claims will be settled within the 10 days of the stipulated time. That is from our side, that it will be a commitment from ICICI Lombard, I would say. Correct. Yeah. जितने भी MSME के बिजनेसमैन बैठे हैं, एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ कि आपका सॉफ्टवेयर कितना बड़ा रोल प्ले करता है ड्यूरिंग क्लेम्स। आज आप एक काम करिएगा, आप अपने क्लेम जो आपका जो एजेंट है उससे बात करिए कि भाई मेरे को स्टॉक के क्लेम में क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, जो सर्वेयर रिक्वायरमेंट जनरेट करता है, वो सारी की सारी रिक्वायरमेंट लिख के दो। फिर आप अपने सॉफ्टवेयर में अपने अकाउंटेंट को बोलिए ये सारी शीट या ये जितनी जितनी रिक्वायरमेंट है इनको स्टॉक स्टेटमेंट ये सब मेरे सॉफ्टवेयर से निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। इसका मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। अगर आप एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं और उस टाइम पे क्लेम के टाइम पर सर्वेयर आपकी रिक्वायरमेंट जनरेट करता है, तो लोगों को 4-4, 6-6 महीने आपको उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने में लग जाता है। What we have started doing कि at the time of taking policy,
हम अपनी रिक्वायरमेंट बताते हैं और उनसे बोलते हैं कि आप अपने अकाउंटेंट से बोलो ये सारी की सारी रिपोर्ट्स निकाल के हमारे दे। नहीं है तो आप अपने वेंडर से बात करो कि हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर ये सारी की सारी फैसिलिटीज इंक्लूड करें, including new modules inside. Okay. हाँ दैट यू नो उससे क्या होता है जो काम वहाँ 4 या 6 महीने लगते हैं वो आप वेरी सेम डे सर्वेयर को निकाल के शीट दे देते हैं। आपका सारी चीज़ें, आपका टाइम कितना बचता है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देने की जरूरत है। Thank you very much. Thank you very much for this wonderful discussion, sir. I mean, we have been discussing a lot, and I think we have got some points for you also there. Talking about prevention is better than cure, then educating our team so that they can actually provide the best and the correct solutions out in the market, which will actually create a much better health out in the MSME segments, right? Right. Thank you so much.